Ji is a writer, poet, and a former civil servant. Nice combination. He was a member of Central Administrative Tribunal and has retired as a member of the Railway Board. Writing in his passion, his poetry, whether in form of a nazm, a ghazal, or haiku, largely talks about our day-to-day pleasures and pains arising out of very existence. His poetry transcends the boundaries of relationships and travels beyond its meaninglessness. Sihai, his collection of nazm, ghazals, and geet, is Devanagari script and Hindustani language of our day. Today it discourse and is recently he has published a book of 1,000 haiku poems, covers many more subjects revolving around our lives, living the way it does. So we are extremely grateful to have you here with us. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे हम. Mr. Tajinder Singh Luthra ji is a poet of Hindi and a translator of English. His poems hover around struggles of a common man, his deep philosophical worldview, and feelings of love from various perspectives. His first poetry collection, अस्सी घाट का बांसुरी वाला, अस्सी घाट का बांसुरी वाला, in the Hindi language was published in 2012, and the second one, Ek Naya Ishwar, has just been released. His poems have been accepted and published in influential American literary journals including New York Quarterly, New Plains Review, Voices, and among others. He's a senior police officer and he was also awarded Indian Police Medal for Meritorious Service and President's Police Medal for Distinguished Services. I think that calls for an applause. It's an honor for us to have you here with us, sir. And last but not the least, a familiar name for the regular attendees of Bhopal Literature and Art Festival, Vardul Singh ji holds a postgraduate diploma in journalism and mass communication. He was commissioned in the Indian Army and left as a captain when he was selected for the CISF in the 1994 batch of UPSC. Apart from his other assignments, he has also served as a spokesperson for the UN Police in Kosovo and has also been on deputation to the Ministry of Home Affairs. Vardul ji is currently posted in a senior position with the Government of India. An avid reader and literary critic, Vardul's published works include Bhopal Nama, Writing a City, जो I'm sure यहाँ से काफ़ी भोपालियों ने पढ़ी है, पहले discussions भी हुए हैं. At the same time, another book titled Ek Guna Bekhudi, and it is again a critically acclaimed novel, in addition to many short stories published in prominent Hindi magazines. And with that, I'll be requesting the gentleman कि इस कविताओं के साथ modern day poetry के बारे में जो one of the most awaited discussions हैं, मैं चाहूँगा वो इसका शुभारंभ करें और हमारी तालियाँ उनके साथ ज़रूर होनी चाहिए. जय सिद्धार्थ, आप जब बोल लेते हैं तो उसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं रह जाता है. हमारे ख्याल से अब आपको मॉडरेट करना चाहिए. आप में इतना डायनामिज्म है. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much for being with us. I know this topic doesn't appeal so much to people who are not discerning for literature, poetry. और हम समझते हैं जब हम लोग यहाँ बैठे, आप और हम लोग, जमशेद जी एंड तजिंदर साहब, तो माहौल ही कुछ इतना पोएटिक है. अगर आप झील की तरफ देखें तो अपने आप पोइट्री आपके जहन में आने लगती है. बहरहाल एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम लोगों भोपालियों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो आपके अल्फाज के तलफ़ुज़ को भी सुधारेंगे और आपके तहरीर के नुक्ते को भी. तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे कि नुक्ते और को कभी कभी करेक्ट भी कर सकते हैं. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम लोग सबको जो है कहीं ना कहीं से उर्दू का इस्तेमाल भी करना होता है. सबसे पहले जमशेद जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा. इट इज़ ऑफन सेड दैट अ बुक इज़ एंड रादर डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. मैंने जब पहली बार हाइकू उठाई और हाइकू का जो जैकेट डिज़ाइन था वो अपने आप में इतना अपीलिंग था कि हमें कहीं से लगा कि जितना अपीलिंग इसका जैकेट डिज़ाइन है
शायद कहीं उतना ही अपीलिंग इसके अंदर के कंटेंट होंगे. एंड लेट मी टेल यू, आई वाज जस्ट नॉट sort of it was perfectly the way I thought that an anthology, a collection of poetry should be. हाइकू का जो कवर डिज़ाइन है, थोड़ा सा हम आपसे इस पे वो चर्चा करना चाहेंगे. उसका जो मेरी समझ में आया वो है बुलबुल, जो कि विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइट मोटिव ऑफ पर्शियन पोइट्री. और बुलबुल या वैकटेल, एनी ऑफ द वैकटेल्स प्रोबेबली, आप ज़्यादा अच्छे से उसको बता पाएंगे, वो हम लोग के शेर व शायरी में और हम लोगों के इन आवर एंटायर जो हमारा बिंब रहा है, जो हमारी एलेगरीज रही हैं, जो हमारे वो रहे हैं, उसमें शामिल है. कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा उसके ऊपर. वातुल जी, बहुत शुक्रिया. आज जब लिटफेस्ट में भी हम लोग यहाँ आए हैं और ये सेशन मॉडर्न इंडियन पोइट्री के बारे में है. मेरा ताल्लुक़ मॉडर्न इंडियन पोइट्री में रहा है जब से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है. और ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसको हम लोग मॉडर्न इंडियन पोइट्री की बात करेंगे, जहाँ पे लैंग्वेज का कंटेंट और सब्जेक्ट का कंटेंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. आपने कवर से ही शुरुआत कर दी. ये मेरी दूसरी किताब है. ये मेरा दूसरा सवाल था जी. ये दूसरी जो किताब है जिसका नाम है हाइकू, ये भी एक तजुर्बा है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट था. 1000 हाइकू का ये कलेक्शन है. और इसके कवर के बारे में आप कह रहे हैं तो ये कवर, ये एक फ़ोटोग्राफ है एक बहुत खूबसूरत सी चिड़िया का. और जैसा कि आपको लगा कि चिड़िया में बड़ी फ़्लाइट होती है, एक उड़ान होती है, और वही उड़ान जो हम लोगों के ख़यालों की उड़ान है और तजुर्बात की उड़ान है, उन सारी उड़ान को लेकर ही तो सेंसिटिविटीज़ होती हैं. और जब परवान जब तभी चढ़ता है और जब ही कुछ लिख सकते हैं आप. जी. अच्छा, अब जो हम लोग के आज की शाम का जो हमारा मजमून है वो है मॉडर्न इंडियन पोइट्री. तो हम आप लोग सबसे जानना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी ये बताया जाए. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ कि व्हाट इज़ मॉडर्निटी, व्हाट इज़ कॉन्टेम्पोररी. कहने का मतलब कि आधुनिकता और समकालीनता की जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन पोइट्री के संदर्भ में, तो हमें कहीं से लगता है कि गालिब अगर 1869 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन मिर्ज़ा गालिब उतने ही रेलेवेंट आज हैं और उतने ही मॉडर्न हैं जितना कि शायद उस समय. तो कहीं से कवि अपने वक्त को लिखता है और उसकी जो विश्वसनीयता और उसकी एक तरह का प्रोफेटिक उसकी चीज़ें होती हैं जो कि हर समय में वो होती हैं. तो मॉडर्न का डेफिनेशन मैं आपसे जानना चाहूँगा. मॉडर्न का डेफिनेशन और मॉडर्न का इंटरप्रिटेशन, ख़ास तौर से जब हम मॉडर्न इंडियन पोइट्री की बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में दो ही चीज़ें आती हैं और जिसको मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ. एक तो वो चीज़ होती है कि आप लैंग्वेज, और दूसरा उसका कंटेंट, ये चीज़ों को कंटेम्प्रेरी बनाते हैं, ये चीज़ों को मॉडर्न बनाते हैं. अब आप हमेशा तो शाश्वत प्रेम के बारे में और या इश्क जावेदा जिसको कहते हैं, जो हमेशा अमर रहता है, अमर प्रेम के बारे में लगातार नहीं लिख सकते हैं. और उससे हटकर अगर आप सब्जेक्ट्स पे आएंगे, जैसा कि मॉडर्न डेज़ में हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पोइट्री उन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है. और ये पोइट्री सिर्फ उसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है जिसका नाम गज़ल होता है कि साहब आप अपनी बिलवेड से बातचीत, जिसको फ़ारसी में कहा जाता है. और हर चीज़ बहुत खूबसूरत है और हर चीज़ रिवॉल्व राउंड करती है एक पर्सोना के आसपास. इससे हट के अगर हम आते हैं तो ये मॉडर्न है. और जब दूसरी चीज़ आप लिखते हैं कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, ये लैंग्वेज वही लैंग्वेज तो नहीं है जो एक बड़े एलीट क्लास की लैंग्वेज है, जो एक पुराने ज़माने में जब शायरी लिखी जाया करती थी उर्दू की, तो वो बड़ी पर्सनाइज्ड शायरी हुआ करती थी. शुरू किया था. क्लिष्ट उर्दू कह लें, क्लिष्ट हिंदी कह लें. इनकी कविताएं जो होती हैं वो उनका मास बेस नहीं होता, अपील नहीं होती है. तो मॉडर्न होने के लिए ज़रूरी है कि ज़बान वो वाली हो जो आपकी हमारी सबकी ज़बान हो, जो हमारे समझ में आए. उसमें अंग्रेज़ी भी हो, उसमें ब्रज भी हो, उसमें अवधी भाषा भी हो, और उसमें हिंदी भी हो, उसमें उर्दू भी हो. सबके अल्फाज हों जो हम आम तौर से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. बहुत बढ़िया कहा आपने. तजिंदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी कविता से उसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं और कहाँ तक उसको अपनी कविता में आपने लागू करने की कोशिश की है. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर. बहुत मुश्किल सवाल है आपका, क्योंकि मॉडर्न पोट्री को डिफ़ाइन करना, और पर्टिकुलरली जब आप
मॉडर्न इंडियन पोइट्री कह रहे हैं, उसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें सभी भाषाएं आ जाती हैं। उसमें सिर्फ हिंदी नहीं है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, अंग्रेज़ी भी है। हमारी जो संविधान की भाषाएं हैं उसमें अंग्रेज़ी को भी जगह दी गई है। तो मॉडर्न इंडियन पोइट्री को क्या करना चाहिए? अगर मैं इसकी बात करूं तो दो चीज़ें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो कि हमें करनी चाहिए सभी भाषाओं में, सभी तरह की पोइट्री में। पहली बात तो ये कि पिछले कुछ सालों से, लगभग 70, 80, 100 साल से पूरे वर्ल्ड में सभी लैंग्वेजेस में जो वर्स है वो फ्री वर्स के रूप में लिखी जाने लगी है। आप फ्रेंच पोइट्री ले लीजिए, इंग्लिश पोइट्री ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए। पहले फ्री वर्स का चलन नहीं था। पहले राइमिंग में, रदीफ काफिया में बात होती थी। तो अब फ्री वर्स को ही मॉडर्न पोइट्री का व्हीकल माना जाता है, और जनरली जब हम बहुत ज़्यादा राइमिंग वाली पोइट्री को पढ़ते हैं या कोई सामने आती है तो लिटरेरी सर्कल्स में उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। गज़ल वगैरह एक अलग जॉनरे है, गज़ल का अपना एक स्थान है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी राइमिंग वाली जॉनरेस थे उनको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन फ्री वर्स के कारण एक पोइट्री के ऊपर एक अत्याचार भी हुआ है कि अब आपको ये छूट मिल गई कि आप कुछ भी लिख दीजिए, आप कहीं भी कैसी भी लाइनें उठाकर लिख दीजिए तो वो पोइट्री के रूप में एक्सेप्ट होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपको इतना ही फ्री वर्स में लिखना है तो फिर आप गद्य लिखिए, प्रोज लिखिए, उसमें स्पेसिफिक लिखिए, डिटेल से लिखिए। पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के कवि के ऊपर, आज के शायर के ऊपर फ्री वर्स में लिखते के कारण एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ा दायित्व आ गया है कि वो फ्री वर्स के अंदर एक आत्मिक लय होती है, एक अंदरूनी रिदम होती है, उसको वो बचा कर रखे। क्योंकि अगर हम उसको बचाकर नहीं रखेंगे तो हम फ्री वर्स के थ्रू जो लिख रहे हैं, खुली कविता जिसको कहते हैं, नई कविता जिसको कहते हैं, उसको अगर हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे तो हम पोइट्री के साथ बहुत अन्याय करेंगे। एक पॉइंट तो ये जी। दूसरा पॉइंट जो कंटेम्प्रेरी होने के लिए या मॉडर्न होने के लिए पोइट्री को जो करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। एजुकेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हमारी महिलाएं बाहर काम करने जा रही हैं, उनका रोल सोसाइटी में बदल गया है। तो नए मूल्य, नई कदरें, नई वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मॉडर्न पोइट्री को उन नए मूल्यों को, नई कदरों को, नए वैल्यू सिस्टम को समाज में एस्टेब्लिश करना है। जैसे अभी तक ये माना जाता था कि जो स्त्री है उसका सौंदर्य उसके शरीर से निर्धारित होगा, लेकिन क्यों होगा भाई? स्त्री भी तो काम करती है, वो भी तो कर्मयोगी है, वो घर से बाहर निकल के जाती है, उसका जो कर्मयोग है वो भी तो उसके सौंदर्य का हिस्सा होना चाहिए। उसके मन में भी तो एक सुंदरता है, उसके मन का जो सौंदर्य है वो भी तो उसके सौंदर्य का हिस्सा होना चाहिए। तो मॉडर्न पोइट्री को ये जो नए मूल्य हैं इनको एस्टेब्लिश करना होगा। और दो बातें छोटी छोटी और मैं कहूँगा, इसके साथ साथ मॉडर्न पोइट्री के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी संस्कृति है, विरासत है। मॉडर्न पोइट्री मॉडर्निटी के नाम पर उसको छोड़ ना दे। मॉडर्न पोइट्री उसको साथ लेकर चले और नौजवानों से उसका रिश्ता बनाकर रखे, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का। एक चीज़ और जो आपने अभी कही थी, कम्युनिकेशन, जिसको मैं कम्युनिकेशन के तहत एड्रेस करना चाहूँगा। आपने कहा गालिब साहब आज तक रेलिवेंट हैं। ये बात कबीर भी रेलिवेंट है, तुलसी भी रेलिवेंट है, अवधि में लिख गए लेकिन आज भी घर घर पाठ हो रहा है रामचरितमानस का। तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको मॉडर्न पोइट्री को डिसाइफर करना होगा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अच्छी कविताएं नहीं लिख पाएंगे। हमारी जो कविता की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने में खत्म हो जाएगी। कविता को कंटेम्प्रेरी होना चाहिए,
उसको कंटेम्परेरी मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन इस ढंग से उठाना चाहिए कि वो आने वाले 200 साल तक वो कविता पढ़ी जाए। बहुत अच्छा। कबीर ने जब अपने मुद्दे उठाए उस समय के, तुलसी ने जो बातें कही, जो मूल्य लिखे, वो उस समय के कंटेम्परेरी मुद्दे थे। गालिब साहब ने भी जो लिखा वो उस समय के कंटेम्परेरी मुद्दे थे, लेकिन उनका कहने का जो अंदाज था वो इतना ब्रॉड था कि 200 साल बाद भी, 400 साल बाद भी, कबीर साहब को शायद 400 साल हो गए हैं, तुलसी साहब को भी 400 साल हो गए हैं, 400 साल बाद भी उनकी कविता रिलेवेंट है। तो मॉडर्न पोइट्री को जो करना है वो ये है कि हम अपनी कविता को एक नैरो बैंड में मत लिखें। मुद्दा नैरो बैंड का हो सकता है, लेकिन उसको कहने का जो अंदाज है, उसको कहने का जो स्तर है, वो बहुत व्यापक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और हम आपकी स्पेसिफिक जो कविताएं हैं उस पर अभी फ़िलहाल और बात करेंगे। जमशेद, आपके तरफ हम मुखातिब होते हैं अभी। एक चीज़ जो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपके दोनों किताबों की कविताओं से, स्याही और हाइकू दोनों। पहले तो हाइकू का जो पूरा कॉन्सेप्ट, जो एक कहीं से आपके जहन में ये कतात का जो वो एक फॉर्म था जी, वो, और दूसरा जो हमें लगा है कि दोनों उसमें आपके जो शब्द हैं कहीं से हमें फैज़ अहमद फैज़ की बहुत याद दिलाते हैं। हाँ, जैसे आपकी, जी। मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ। अच्छा। एक है आपकी बेमेहर। तो बेमेहर शब्द भी थी बहुत बेमेहर सुबह है मेहरबान रातों के बाद, बेमेहर हम के ठहरे अजनबी, कम इस्तेमाल होता है। हाँ, yes, हाँ। बेमेहर। उसके अलावा एक और आपने शब्द इस्तेमाल किया है जिसको कि मलिका पुखराज की बहुत बढ़िया गज़ल है, दश्त तन्हाई। दश्त तन्हाई, जी, दश्त जी, तन्हाई आपकी कविताओं में बहुत आया है। हाँ। दश्त तन्हाई ए जाने जहां, जी। और आपकी एक लाइन है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जी। कि तेरे पल्लू की तपिश और तेरे होठों के शराब। जी, जी। ये फैज़ अहमद फैज़ की ही वो जी, लाइन है। तो कहने का मतलब आपका जो हेमिस्टिक जो है, और आप उसको पिकअप करके एंड देन यू वीव अराउंड इट ऑन योर ओन थॉट्स। बहुत 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 कमाल का है। और इसी के साथ ये भी होता है कि जितने बड़े शायर हुए हैं, जी, फैज़ को ही देख लीजिए कि फैज़ ने बाजार फिल्म की जो वो गज़ल थी, जिसको कि उन्होंने मखदूम की याद में जो लिखा था, वो भी उन्होंने वही किया था कि उनका हेमिस्टिक, उनके वर्सेस को उठा के फिर उन्होंने अपना वो बुना था। मेरे जो सवाल जो हैं, ये आपको मैंने एक भूमिका बांधी है। जी। सवाल उस ढंग से ये हैं कि फैज़ कहाँ तक आपके उसमें शामिल हैं, और भी मैं बीच बीच में आपके उसमें आऊँगा। बिल्कुल। फैज़, दुष्यंत कुमार, फिराक, ये पसंदीदा शायरों में से हैं। और ऐसा लगता है कि ये, इनको हम अगर मॉडर्न शायरी की तरफ लें क्लासिकल के बजाय, तो ये भी मॉडर्न शायर माने जाएंगे। अभी जब आप मुझे इजाज़त देंगे और एक आध मुझे ये परमिशन होगी कि कोई एक नज़्म मैं पढ़ूँ अपनी, बेशक बेशक, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ। अभी तेजेंद्र जी ने भी कहा था, जो फ्री वर्स या जिसे मुक्त छंद कहते हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी एक राइमिंग भी होती है। और फ़लसफ़ा इसमें आप में से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे कि अल्बर्ट कामू के सिसिफस की एक थ्योरी, जिसमें वो रोज़ एक इंसान एक चट्टान ऊपर तक ले जाता है पहाड़ के, मिथ ऑफ सिसिफस, और उसके बावजूद उसको खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये एक मीनिंगलेसनेस है लाइफ की जिसके बारे में है। कुछ संजीदा है लेकिन अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैं एक ज़िक्र आया था कि किस तरह से आजकल के ज़माने में और विमेन के बारे में, और विमेन इमेंसिपेशन, एम्पावरमेंट एंड हर तरह के अल्फाज हम लोग सुनते जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उस तरफ कुछ कदम आगे बढ़े हैं। लेकिन पहले सिसिफस और हम, कभी ना ख़त्म जो हो ये वो आजमाइश है, कभी जो ख़त्म ना हो ये वो आजमाइश है, तमाम उम्र यही कोशिशें रवां होगी और तमाम उम्र की हिम्मत यहीं फ़ना होगी। ये 4 दिन है अलामत के और ज़िंदा के, ये 4 दिन ही सही, कुछ तो हल कहीं होगा। ये जंगे रोज़ है, क्या कोई हल नहीं होगा। अजीब कोशिशें नाकाम रोज़ व शब हैं यहाँ, अजीब साजिशें अय्याम रोज़ व शब हैं यहाँ। कभी किसी को तो मंजिल मिले तलाश थमे, कभी किसी को तो साहिल मिले ये आस थमे।
कभी तो रास्ता हमवार हो पहाड़ कटे। आपको याद होगा बिहार में एक सज्जन थे जिन्होंने एक पूरा पहाड़ काट के रास्ता निकाला था। आदिवासी जी उनका, जी हाँ जी हाँ। कभी तो रास्ता हमवार हो पहाड़ कटे, कभी तो बोझ ही टिक जाए अपनी मंजिल पे, कभी तो पहुँचे शिकस्ता सा अपने साहिल पे, कभी तो टूटते बाजू के हौसलों को उड़ान, अगर नहीं है पहुँचना करीब मंजिल के, ऐसे सिफत आ जाते हैं कामू, अगर नहीं है पहुँचना करीब मंजिल के, अगर ये बोझ ही ढोना है रोज़ व शब्द सबको, तो बस ये कोशिशें नाकाम ही मयस्सर है, इसी में खुश रहो इंसान ये मुकद्दर है। वाह वाह वाह। दो सवाल और जी। उसके संदर्भ में भी आपसे बात करेंगे अभी। एक तो फिर से मैं आता हूँ फैज़ साहब के उसमें जी। आपकी 2-3 कविताओं में मैंने देखा है, जैसे एक आपने लिखा है अलेप्पो, रक्का अलेप्पो, और भी मुझे याद आ रहा है। फैज़ साहब की जो इंटरनेशनलिज्म जो उनका था, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हम लोगों ने सेशन अटेंड किया जी, जिसपे कि एम्बेसडर अहमद साहब ने जी फिलिस्तीन के ऊपर आज अभी जो जी फैज़ की एक बहुत शानदार नज़्म फिलिस्तीन पे है, मत रो मेरे बच्चे, हाँ यस कम बैक अफ्रीका, जी हाँ, उसके अलावा ईरानी तुलबा के नाम, जी तो ये जो इंटरनेशनलिज्म और जो उस समय के जो कॉज थे जी, वो कहाँ से, और तजिंदर साहब जो अभी इन्होंने बताया कि हमें उन मुद्दों को भी अपनी कविताओं में लाना चाहिए, उस पर ज़रा मैं चाहूँगा गौर। तो आप क्या वो रक्का अलेप्पो या रक्का भी सुनाया जा सकता है? वो अच्छी कविता है वो आपकी। और एक अफ्रीका भी जो है आपकी। ये कुछ कंटेम्प्रेरी जैसे बात हो रही थी मॉडर्न इंडियन पोइट्री, तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं और जो वैश्विक इश्यूज भी हैं दुनिया के। एक कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा कि बहुत क्राइसिस चल रही थी सीरिया में, और वहाँ पे बहुत बम्बार्डमेंट हो रहे थे और बहुत लोग वहाँ से माइग्रेट करके बाहर जा रहे थे। फिर एक हम लोगों के सामने एक पिक्चर भी है जिसमें ये था कि टर्की के कोस्ट के ऊपर वो एक नाव पलट जाती है और एक बच्चे की वहाँ पे दिखता है। 2015। तो ये अलेप्पो या रक्का उस तरह के तमाम शहरों के लोगों के बारे में है। आज एक कहर सा बरपा है शहर में, फिर एक गुबार सा है कि हर समत है घिरा, सहमे हुए से लोग घरों में छिपे हुए, आई है खबर कि उस आधे शहर में फिर से गिरी है आग, फलक को भी है पता, मासूम भी थी जाने या शायद नहीं पता। सम बम्बार्डमेंट, किसने किया गुनाह सदा किसको मिल गई, किसका है ये सितम कि जो मखलूक हिल गई, बढ़ता रहा सितम जो इसी तरह हर तरफ, रोती है कायनात परेशान है मग़फ़िरत। और ये आखिरी 4 लाइनें कि अब अलविदा कहो कि शायद ना मिल सकें, सोएंगे आज रात तो शायद ना जागेंगे, होता रहा ये जुल्म, होता रहा ये जुल्म तो परवरदिगार सुन, परवरदिगार ईश्वर, होता रहा ये जुल्म आम मासूमों पे, होता रहा ये जुल्म तो परवरदिगार सुन, मासूम हाथ उठा के दुआ फिर ना मांगेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, एक सवाल उस पर भी आपकी एक कविता में जाना चाहूँगा। सजा और सवाल नहीं, हाँ, मेरा सवाल जी आपका सवाल जरूर। ये हम लोग ईस्टर्न यूपी को बिलोंग करते हैं। ईस्टर्न यूपी बिहार में एक कहावत है गूलर के फूल, कि आमतौर की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि गूलर के फूल हुए हो क्या। तो गूलर के फूल के नाम की एक कविता भी आपकी है और गूलर के फूल का इस्तेमाल भी आपने कई जगह किया है। गूलर के फूल अमूमन मैंने देखा है कि कविता में कहीं से वो आता नहीं है। ये एक बहुत ही नायाब आपका प्रयास है, ये मैं कहना चाहूँगा। गीत में आप संभवतः गीत ही हो सकता है। जी ये है 94 नंबर पेज पे शायद। अच्छा, आप वो सुनना चाहेंगे? मैं सोचा था कि दूसरा वाला अगर गीत है वो पढ़ दिया जाता। और उसके एक बनारस में, क्योंकि हमारी स्कूलिंग काशी में हुई और उसके अलावा यूनिवर्सिटी इलाहाबाद थी, तो बनारस और इलाहाबाद और काशी और प्रयाग इनसे बड़ा वास्ता रहा है। इसलिए बल्कि वहाँ पे दूसरी कहावत अगर आप सुने तो वो हुआ करती थी, उसको भी मैंने इस्तेमाल किया है एक जगह अपने हाइकू में, लागल झुलनी का धक्का बलम कलकत्ता। अरे ये ठुमरी भी है, ये एक कहावत हुआ करती थी। और इसको लागल झुलनी का धक्का हम लोग समझते थे कि दोनों चीज़ें होती थी। देखिए इसको, मतलब उस ज़माने की हाइकू है ये, बिल्कुल। कि बलम को इतने हल्के थे कि उनको झुलनी का यानी बूंदे का धक्का लगा तो वो कलकत्ता गिरे। एक तो ये नॉर्मल मीनिंग हो गया,
लेकिन लागल झुलनी का धक्का कि हमको झुलनी दिलवाओ सोने की, उसके लिए आदमी जब काम करने चला जाता था, कलकत्ता उस ज़माने में बहुत लोग जाते थे बिहार से, पूर्वांचल से, और बम्बई जाते थे कमाने के लिए, क्योंकि उनको एक चैलेंज जैसा हो जाता था कि हम जाएंगे, पैसा कमा के लाएंगे और फिर ये बुंदा खरीदेंगे। कथा कलाम माफ, गिरजा देवी की बड़ी शानदार ठुमरी है इस पे, पूरब मत जइयो मोरे राजा जी, गोरिया की लंबी लंबी जुल्फें, उलझ मत जइयो मोरे राजा। तो पूरब से वहाँ का कॉन्टेक्स्ट जो है वो कलकत्ता से है। तो गीत पे आने से पहले अगर कुछ वो नज़मों पे ऊपर चल रहे थे, तो एक मैं सुनाना चाहूँगा कि सज़ा और सवाल, ये बेसिकली एक बहुत सारे सवाल हैं कि ये ऐसा क्यों है कि हम अभी भी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम लोग महिला दिवस का आयोजन करते हैं और उस दिन कुछ लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं है कि ये अगर आप लोग सशक्त हो जाएं और अगर आप सामने निकल के आएँ तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। मतलब आज के ज़माने में भी ये कहना कि आप क्यों नहीं बाहर निकल के आए, ये बड़ी अजीब सी चीज़ मुझको लगती है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसले सिर्फ हवा करती है। अब आप ये देखें कि फैसले सिर्फ हवा ही क्यों करती है, फैसले सिर्फ दूसरे ही क्यों करते हैं आपके लिए। तो यहाँ महिलाएं भी हैं, उन्हीं के नाम पे ये एक नज़्म है, सज़ा और सवाल। हक तुमको बराबर कर दिया क्यों नहीं जाता, हक तुमको बराबर कर दिया क्यों नहीं जाता, इस जुल्म का एहसास किया क्यों नहीं जाता। बरसों से यही हाल है हव्वा की नस्ल का, अब इन द जनरेशन ऑफ ईव, यस, बरसों से यही हाल है हव्वा की नस्ल का, सदियों से गुलामी की सज़ा झेल रही हो, क्यों अब भी तुम्हारे लिए वो फैसले करते, किस पाप की संगीन सज़ा झेल रही हो। इस तरह की हर तरह की आज़ादी तो जायज़ है उन्हीं पर, हाँ मैन फोक की बात कर रहा हूँ, हर तरह की आज़ादी तो जायज़ है उन्हीं पर, हर ज़ख्म का नासूर तुम ही झेल रही हो, सब फ़र्ज़ हैं वाजिब ऑल द ड्यूटीज़ तो तुम्हारे ही लिए हैं, हर कर्ज़ का अंजाम तुम ही झेल रही हो। वो कौन है जिसने तुम्हें दे दी हैं हदें ये, हु आर दोज पीपल हु हैव गिवन यू दीज लिमिटेशंस, चौखट से निकलने की सज़ा झेल रही हो। ये कैसी ग़ुलामी है कि मर्ज़ी की नहीं तुम खुलकर यहाँ जीने की सज़ा झेल रही हो। और एक आखिरी 4 लाइनें के, अब वक्त तुम्हारा है इसे पालो झपट लो, बरसों से इसी जुल्म को क्यों झेल रही हो। हक तुमको बराबर का नहीं कोई करम है, किसी का करम नहीं है अगर आपको बराबर का हक मिलता है, लड़ने का इरादा करो क्यों झेल रही हो, नस्लें तुम्हें पूजेंगी जो कुछ तुमने किया, अब ये जंग तुम्हारी है तो क्यों झेल रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी 2 सवाल जी जी उसके जी ज़रूर ज़रूर में अगर आप कुछ और सुनाना चाहें तो। एक मैंने आपकी 2-3 जो पढ़ी है, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया है मुहाज़िर, हिजरात, जी 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 जी, और एक आपकी हाइकू है, वो सवाल मैं आपको करता हूँ। पहले ये हाइकू मैं पढ़ना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग है। ये आपने लिखा है, एहतजाज गार खातिरे हक, एहतजाज गर खातिरे हक, घर खातिरे हक, अनल हक, अनल हक, यस, फिर वही आ गया वहाँ जी जी। और एक और आपने जो मैंने आपको बताया कि जो मुहाज़िर और हिजरात का जो जिक्र है, कहीं से कुछ वो इस्लामिक सिंबॉलिज्म या इस्लामिक पाइटी या इस्लामिक उससे भी रिलेटेड फैज़ ने भी बहुत इस्तेमाल किया। अनल हक का उठेगा, अनल हक का नारा। हाँ, तो अनल हक बेसिकली इट इज दैट चैलेंज जब किया गया था, इनफैक्ट द गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया था, उसके बाद सूली पे चढ़ा दिए गए थे। तो वो वाली जो एक चीज़ है वही इसमें आई है। अनल हक का बेसिक मतलब यही है कि आई एम द ट्रूथ, या आई एम द ट्रूथ, तो आई एम द ट्रूथ कहने की हिम्मत जब हुई थी तो उसका फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो मैंने ये कहा है कि खामियाजा चाहे जो भी हो, लेकिन सच जो है इसी के ऊपर जो एक गज़ल है वो मैं चाहूँगा कि वर्तू जी, क्योंकि हमने नज़्मों को तो किया एक ये एक होती है गज़ल, हिंदी गज़ल, बेसिकली दुष्यंत कुमार से बड़ा प्रभावित हूँ, और ख़ास तौर से जब गज़ल लिखी जाती है तो उसमें नॉर्मली हर कपलेट जो होता है 2-2 लाइन का, वो एक दूसरे से अलग होता है। यही उसकी ब्यूटी है, अपने आप में कंप्लीट होता है। एक कहलाती है मुसलसल गज़ल, जिसका मतलब ये होते हैं कि एक थॉट जो है कहीं पे अंडरलाइंग थॉट वो पूरे 5 कपलेट्स में या शेर में वही है। तो ये उसी तरह की है, और आप शायद इससे जुड़ेंगे कि इस तिलिस्मी दौर में छूते ही सोने हो गए, इस तिलिस्मी दौर में छूते ही सोने हो गए, नेकियों के काम भी अब जादू टोने हो गए, नेकियों के काम भी अब जादू टोने हो गए, उनके हाथों खेलने का शौक़ पूरा हो गया, उनके हाथों खेलने का शौक़
पूरा हो गया, मर्तबे उनको मिले हम बस खिलौने हो गए, मर्तबे उनको मिले हम बस खिलौने हो गए। और ज़िंदगी की दौड़ में सब कुछ लगा कर दांव पर, ये रिश्तों में भी होता है, जी हाँ जी। ज़िंदगी की दौड़ में सब कुछ लगा कर दांव पर, जीत तो पाली मगर कुछ लोग बौने हो गए, जीत तो पाली मगर कुछ लोग बौने हो गए। और जो वो बात हो रही थी अनल हक की और सच की जुस्तजू की और सच की तलाश की, उसके लिए है कि एक सच की जुस्तजू में, एक सच की खोज में, एक सच की जुस्तजू में जो मिला सब ठीक था, तलखियों के ख्वाब मखमल के बिछौने हो गए, तलखियों के कड़वाहटों के ख्वाब मखमल के बिछौने हो गए। एक आखिरी है कि रिस रहा है दर्द, छलनी हो चुकी है जिस्मो जां, शाख अब लकड़ी हुई पत्तों के दोने हो गए। वर्तुल जी फिर कहेंगे कि दोने का इस्तेमाल आपने यहाँ किया है। जी हाँ, मैंने शुरू में लिख दिया था कि हर तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। जी जी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक आखिरी सवाल, फिर तेजेंद्र साहब हम लोग आपकी कविताओं की जिक्र करेंगे। के बारे में बाद में आपने कई दफ़ा कहा है, हाइकू भी हम बात करेंगे। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है जो कि आज का जो माहौल है उस पर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हमको लगा, खासकर उसके कुछ पॉलिटिकल इंटोनेशंस हो सकते हैं, लेकिन मैं ये हिमाकत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो आपने लिखा है गुफ्तगू अखबार तक रहने न पाए। जी 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 जी। अब है आपको ये बता दें कि खाली अखबार का क्यों इस्तेमाल किया है। अब तो अखबार से ज़्यादा हम फेसबुक, इंस्टा और इसकी बात कर रहे हैं, और गुफ्तगू को किस कदर आगे बढ़ाना है आप अपनी वो ज़रा सा वो चाहूँगा कि। मेरा ऐसा मानना है कि गुफ्तगू से हर तरह का हल निकल सकता है। अगर गुफ्तगू है और गुफ्तगू हमेशा जारी रहनी चाहिए, गुफ्तगू नहीं टूटनी चाहिए। आपस के रिश्तों में, एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात करने में, एक दूसरे मुल्कों के बीच में गुफ्तगू होनी चाहिए, हर जगह गुफ्तगू होनी चाहिए। उसके निकले हल से तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये उसी ज़माने की बात, इनफैक्ट ये बहुत आपने जो देखा कि जब मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, ये बड़ी पुरानी एक नज़म थी जिस ज़माने में बातचीतें हो रही थी, तब की बात है ये। गुफ्तगू से ज़ख्म भर जाएँ तो अच्छी बात हो, गुफ्तगू से ज़ख्म भर जाएँ तो अच्छी बात हो, गुफ्तगू खुलकर चले ना दांव हो ना घात हो, मतलब खुली हुई गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू में दर्द हो इस पार का उस पार का, गुफ्तगू में माँ के आंसू पहुँचने की बात हो। गुफ्तगू चाहो तो उसकी हार अपनी जीत है, गुफ्तगू सोचो तो एक बरसों पुरानी रीत है। गुफ्तगू से तार जुड़ते हैं दिलों के बीच में, गुफ्तगू देखो तो मेरी और तुम्हारी प्रीत है। और गुफ्तगू ऐसी चले हम भी कहें तुम भी सुनो, गुफ्तगू ऐसी चले हम भी कहें तुम भी सुनो, और गुफ्तगू में ही सही कुछ ख्वाब कुछ वादे बुनो, गुफ्तगू में ही सही कुछ ख्वाब कुछ वादे बुनो। सरहदें दिल की खुलें और दर्द के रिश्ते जुड़ें, गुफ्तगू में शब शब की भूलो। दर्द, ये सरहदें और अच्छा है, सरहदें दिल की खुलें हाँ, और दर्द के रिश्ते जुड़ें, बहुत बढ़िया। गुफ्तगू में शब की भूलो और एक नई सुबह चुनो। गुफ्तगू, इसके बाद मैंने कहा था कि जो होती है, बल्कि आप लोग उससे रिलेट करेंगे कि बहुत तरह की डिप्लोमेटिक कोर के लोग भी होंगे जो डिप्लोमेसी एक होती है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी एंड ट्रैक 3 रडार के नीचे एंड इस तरह की जो बातें होती हैं। तो गुफ्तगू बाजार तक रहने ना पाए, गुफ्तगू सरकार तक रहने ना पाए, इससे निकले हल को नस्लें मुंतज़र हैं, गुफ्तगू अखबार तक रहने ना पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुफ्तगू हमको यकीन है रंग लाएगी ज़रूर, गुफ्तगू कुछ दौर सबको आजमाएगी ज़रूर। सरहदों से ये कटीले तार जो हटवा सके, गुफ्तगू कौमों का मुस्तकबिल बनाएगी ज़रूर। और एक चीज़ जो माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कही थी, वो इतिहास रचने के बारे में, गुफ्तगू से हो अमन सबको यही विश्वास भी, गुफ्तगू से एक नई सुबह की सबको आस भी। मुख्तसर है बात ये कि गुफ्तगू जारी रहे, मुख्तसर है बात ये कि गुफ्तगू जारी रहे, और गुफ्तगू से रच लो चाहो तो नया इतिहास भी। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक जाते जाते एक सवाल बस, जो कि आपकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, नज़्म है, गीत हैं, उसमें एक जिसको कहते हैं कि एक तड़पते हुए आशिक का एक, जिसको कहा जाता है कि सोज है नेहा, आप द एंग्स्ट व्हिच नॉर्मली शोज ऑफ अ पोएटिक एंग्स्ट। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि
फरहत मैम से मिलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो आशिक आप में कहीं है। हमारी वो कहाँ से आप में वो तड़प और वो कहाँ से आप में वो सोच है नेहा? आप निकाल के लाएं। 37-38 साल की दोस्त हैं, वो साथ में हैं। और जैसे कि नाम आपने कहा फरहत, तो वो एक होता है रफ़ाकत भी उसी से जुड़ा हुआ है। चंद लम्हों की रफ़ाकत ही बहुत होती है, चंद लम्हों के सिवा ज़ीस्त में रखा क्या है। और आपने देखा हो किताब भी शायद डेडिकेट करी गई है, तेरी आंखों को सिवा दुनिया में रखा क्या। जी हाँ, जी हाँ, जी धन्यवाद। जमशेद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तजेंद्र साहब आपसे अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो मैं आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया है शायद, मैं आपसे इसलिए ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि वर्दी में रहते हुए कहाँ से हम लोगों को इतना समय मिलता है कि हम लोग ये सब सोच सकें। और मैंने आपकी जब कविताएं पढ़ी तो मुझे लगता है कि मैं अक्सर कहता हूँ अपने बारे में कि जब हम एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी हम लोग हैं कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो वर्दी के बारे में ही काम करते हैं, और जब साहित्य या किसी सृजन का काम करते हैं तो सृजन के बारे में ही सोचते हैं। तो वो द्वंद्व और वो डायकॉटमी आप में भी हमें नज़र आई। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपकी कविताओं में हमें लगी है कि इट्स वेरी डाइवर्स। वो डाइवर्सिटी जो है वो दैट इज़ वेरी पैल्पेबल ईच एंड एवरी लाइन विच यू राइट। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया कि आपके कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी क्या हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो रेजिस्टेंस के ऊपर जो कविताएं आपकी हैं और साथ ही साथ आप एक आम आदमी की जो जंग है उसके ऊपर भी आपने कविताएं लिखी है, ये दोनों सोच कहाँ से लाते हैं आप, कैसे आते हैं, और उसका कहना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है? आप में इतनी परसेप्टिबिलिटी है कि आप सेंस कर सकें कि ये समय है अब इन सब चीज़ों को उजागर करना चाहिए? देखिए आपका हेलो जी आपका पहला प्रश्न तो ये है कि पुलिस में रहते हुए, यूनिफॉर्म में रहते हुए और कविता लिखना, ये एक आम आदमी को लगता है कि पुलिस में या आर्मी में रहते हुए जो हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारी काया बदल जाती है, हमारा मन बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और ख़ास तौर से पुलिस में तो बिल्कुल नहीं होता है। उसका एक बड़ा सिंपल सा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे आज 33 साल हो गए हैं आईपीएस में आए हुए, कि अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं, पीछे देखूं कि 33 साल में मैंने अपना समय वर्दी पहने पहने किन किन कामों में बिताया, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समय मैंने जो मेरे पास रोज़ आना अपनी अर्जी लेकर, कंप्लेंट लेकर विक्टिम्स आते हैं, विक्टिम्स ऑफ क्राइम आते हैं, उनको सुनने में बिताया। जब आप किसी विक्टिम ऑफ क्राइम को सुनते हैं तो आपके पास एक संवेदना होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। और पब्लिक का परसेप्शन ये होता है कि जैसे हम 24 घंटे एक्यूज्ड के पीछे, क्रिमिनल्स के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं और फिर उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा सबसे ज़्यादा समय है वो विक्टिम्स ऑफ क्राइम को सुनने में जाता है। तो इसलिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा भी समझदार है, प्रैक्टिकल विजडम थोड़ी सी भी रखता है, तो उसमें खुद ब खुद जो एम्पैथी के स्किल्स हैं, कंपैशन के स्किल्स हैं, कुछ तो हम में कुदरतन होते हैं, नेचुरल होते हैं, सब में होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के लोगों की बात सुनते हैं, क्योंकि आपका पेशा ही यही है, तो फिर वो जो स्किल्स हैं, वो उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो मेरा मानना ये है कि पुलिस ऑफिसर या मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं या और प्रोफेशंस हैं जिसमें पब्लिक से रोज़ का वास्ता पड़ता है, हम सब लोगों की ट्रेनिंग में एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए सेंसिटिविटी का, एम्पैथी का, कंपैशन का। और अगर नहीं है तो मैं तो कहूँगा ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है और हम समझते हैं, जैसे मैंने खुद उसको डेवलप किया है, मैंने खुद उसके ऊपर काम किया है, उसके बारे में पढ़ा है,
उसकी जो पॉजिटिव इंटरवेंशंस हो सकती हैं रियल लाइफ में, उनके ऊपर काम किया है। तो और दूसरा सवाल आपका था कि डाइवर्सिटी या रेसिस्टेंस की कविताएं हैं, आम आदमी के पक्ष में बहुत सारी कविताएं मेरी खड़ी हैं, तो वो कैसे होता है? अब देखिए, जब आप पुलिस ऑफिसर बने हैं तो आपका जो कथा कलाम, आजकल ये आम आदमी जो शब्द है, साधारण व्यक्ति कह लेते हैं जी उसकी जगह मैं समझता हूँ कुछ और शब्द साधारण व्यक्ति। तो ये कविता भी है आम आदमी? नहीं, कविता आम आदमी नहीं है ना। अच्छा, ना, आपने इस्तेमाल किया है ना जो हमारा जो रोज का काम है वो तो एक साधारण व्यक्ति को मिलना और उसकी बात सुनना है। तो वहाँ से ही जो ये रेसिस्टेंस या प्रतिरोध की कविताएं आती हैं, ये उपजती हैं, क्योंकि समाज में हम देखते हैं बहुत विषमताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनमें हमें अभी सुधार करना है। देश आगे जा रहा है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पीछे हैं और उनको भी साथ लेकर चलना है। तो वहाँ से इस तरह की कविताएं आती हैं। जब आदमी इस तरह की चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखता है तो इस तरह की कविताएं आती हैं। धन्यवाद। अच्छा, मेरा एक आपकी कविता बड़ी इंटरेस्टिंग है, अरबी घोड़ा। जी, बहुत जी। गुस्से में रहे होंगे सर बहुत गुस्से में रहे होंगे। उसको पढ़ने के बाद तो मुझे यही लगता है। जी। मैं आपसे चाहूँगा कि वो आप पढ़ें, लेकिन जरूर। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक आप लोग सबके लिए, आप ये कविता जब सुनेंगे तो एक बहुत ही छिपी हुई बगावत है कहीं पे, एक बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह के आपने बिंब और जिस तरह के एलेगोरिकल चीज़ों को लेकर जो आपने लिखा है, दैट इज़ रियली वेरी वेरी फैसिनेटिंग। मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए वो कविता श्रोताओं के लिए ज़रूर। देखिए, ऐसा है, अरबी घोड़ा जो कविता है बेसिकली वो इनइक्वालिटी पे लिखी गई कविता है। असमानता, और असमानता जो है वो सिर्फ एक डोमेन में नहीं होती है। हम बार बार, कभी कभी क्या होता है कि हम बार बार कविताओं को पॉलिटिकल डोमेन में देखना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो सिस्टम है, पॉलिटिकल डोमेन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें सोसाइटी का भी डोमेन है, उसमें कास्टिज्म भी है, उसमें रिलीजन भी है, उसमें हम सब लोग भी हैं जो अपने आप को बड़े गर्व से सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, जो सिस्टम में इनइक्वालिटी है, उसके ऊपर ये कविता लिखी है मैंने। और आप एजुकेशन में चले जाइए, आप इसको अमेरिकन सिस्टम के ऊपर लागू करके देख लीजिए। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वालिटी है, वहाँ की सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। तो ये इनइक्वालिटी के ऊपर लिखी गई कविता है। और मेरा मानना ये है कि अरबी घोड़ा का जो मेटाफर है वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अरबी घोड़ा जो है वो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी गति के लिए जाना जाता है। तो हम सब लोग अपने अपने स्तर पर अरबी घोड़े हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जंजीरों में भी जकड़े हुए हैं। तो ठीक है, मैं सुनाता हूं आपको अरबी घोड़ा। अरबी घोड़ा। बेतहाशा भागते डोहते एक ही दिशा में, होकर नतमस्तक और बिना किए प्रश्न। एक बेतहाशा भागते डोहते एक ही दिशा में, होकर नतमस्तक और बिना किए प्रश्न। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका अब। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटी काठी। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें। चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें। और पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। और पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। बहुत अच्छा। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। और खुद सवार हो अपने पर,
और खुद सवार हो अपने पर, कहूँ तुम्हें मुस्कुराकर। और खुद सवार हो अपने पर, कहूँ तुम्हें मुस्कुराकर। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर, आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। धन्यवाद, थैंक यू। एक कविता और है जो कि इसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें उस कविता का नाम है ऐसे ही सोए हम। ऐसे ही सोते हैं हम। सोते हैं हम, जी हाँ। जी जी। ऐसे ही सोते हैं हम। उसमें उस कविता में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमको ये लगता है कि जो उसकी एक कहना चाहिए कि इनहेरेंट सेंसुअलिटी है, एक जो ऐन्द्रियकता है, वो बहुत ही कमाल का आपने उसको लिखा हुआ है। और कहीं से ये लगता भी है कि फिर जो मैं जमशेद जी से कह रहा था कि एक सुप्त अवस्था में एक छिपा हुआ आशिक कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो देखिए, प्रेम कविता को लिटरेचर के जॉनर में लिखना मुश्किल काम है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि प्रेम कविता लिखते लिखते कभी कभी वो स्खलन की कविता हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मांसल हो जाती है। प्रेम कविता में जो सम्मोहन है वो एक जादुई सम्मोहन रहना चाहिए। उससे अगर आगे वो बढ़ जाएगी तो वो अपना आकर्षण खो देगी। तो ये प्रेम कविता है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की, मेरे लिए इस तरह की कविताओं को लिखना मुश्किल है। इसका शीर्षक है ऐसे ही सोएंगे हम, ऐसे ही सोएंगे हम। और हम सबके साथ ये जीवन में होता है। एक समय आता है कि हम सब लोग ऐसे ही सोते हैं, ऐसे ही सोएंगे हम। आज फिर हम दोनों साथ हैं बिस्तर पे, छोटा सा फासला है बीच। आज फिर हम दोनों साथ हैं बिस्तर पे, छोटा सा फासला है बीच। मैंने उसका हाथ धीरे से सहलाया और सो गया एक आश्वासन के साथ। मैंने उसका हाथ एक आश्वासन से सहलाया और सो गया एक आश्वासन के साथ। उसने भी मेरा हाथ पकड़े पकड़े गहरी नींद पकड़ ली। उसने भी मेरा हाथ पकड़े पकड़े गहरी नींद पकड़ ली। रात भर उत्तेजना ढूंढती रही हमें, रात भर उत्तेजना ढूंढती रही हमें, पर विश्वास ने सारा बिस्तर घेर लिया था। पर विश्वास ने सारा बिस्तर घेर लिया था। उस आकर्षक चाहत ने भी बहुत किया प्रयास, उस आकर्षक चाहत ने भी बहुत किया प्रयास। धीमे धीमे प्रेम ने उसे सुलगने नहीं दिया, धीमे धीमे प्रेम ने उसे सुलगने नहीं दिया। और वो कड़क मचलन मन मसोस के दब गई, और वो कड़क मचलन मन मसोस के दब गई हमारे हाथों की स्थिरता के नीचे, हमारे हाथों की स्थिरता के नीचे। हम उठे सुबह बिना किसी अधूरी उत्तेजना के, हम उठे सुबह बिना किसी अधूरी उत्तेजना के, और बिना खिन्न खिन्न बरसों से सोई लिप्सा से, और बिना खिन्न खिन्न बरसों से सोई लिप्सा से। हम दिन भर रहे निरंतर निहारते नएपन से, हम दिन भर रहे निरंतर निहारते नएपन से। देते मधुरता एक दूसरे को, देते मधुरता एक दूसरे को। आज रात फिर धीरे धीरे हाथ सहलाते, हाथ पकड़ते, आज रात फिर ऐसे ही सोएंगे हम। बहुत बढ़िया। आज रात फिर ऐसे ही सोएंगे। देखिए 80 साल की उम्र में जब गुलजार साहब लिख सकते हैं कि जुबां पे लागा नमक तेरे इश्क का, तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें तो हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग में रहती ही है। एक और आपसे मैं चाहूँगा कि एक आखिरी कविता और आप पढ़ दें अपनी, उसके बाद मैं वी हैव टाइम, थोड़ा सा हाइकू कविता, थोड़ा सा टिटल। तो एक कविता हम लोग सुनना चाहेंगे, एक नया ईश्वर। वो शानदार कविता है। एक नया ईश्वर जो कविता है, मेरे जो अभी इस साल 23 में जो मेरा दूसरा काव्य संग्रह आया, उसका जो काव्य संग्रह का शीर्षक है वो भी एक नया ईश्वर है, और ये कविता भी एक नया ईश्वर है। इनफैक्ट मैं
कुछ साल पहले सिंगापुर में एक बार ट्रेनिंग के लिए गया, तो ट्रेनिंग का जो ग्रुप था उसमें मैं सीनियर मोस्ट था, तो उन्होंने मेरे साथ एक लाइजन ऑफिसर और एक गाड़ी मुझे दे दी, तो सिंगापुर पुलिस ने। तो वो जो लाइजन ऑफिसर था मुझे बोला, सर शाम को आप बोलिए कहाँ चलना है, आपको घुमाते हैं। तो उसने सोचा कि शायद कहीं बोलेंगे कहीं किसी मॉल में ले चलो, कहीं और इस तरह के रेस्टोरेंट में ले चलो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार मैं कल यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक अलग किस्म का मंदिर देखा, उस पर लिखा था ताओ मंदिर। तो मैंने कभी इस तरह का मंदिर देखा नहीं है। ताओ एक रिलीजन भी है, फिलॉसफी भी है, पर मैंने उस समय तक ऐसा कोई मंदिर ना सुना था, ना ऐसा कोई धर्म के बारे में सुना था। तो मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलो। तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ कि कहाँ ले जाने को बोल रहे हैं। तो वहाँ पर मैं गया और कुछ समय बिताया। तो उसके बाद ये कविता हुई, एक नया ईश्वर। छोटी सी कविता। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला, आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था, मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मैंने नए ईश्वर से बात की, मैंने नए ईश्वर से बात की। उसकी बातें चाल ढाल सब वैसा ही था, उसकी बातें चाल ढाल सब वैसा ही था। मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, तुम किसके हो ईश्वर, मेरे या मेरे दोस्त के? मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, तुम किसके हो ईश्वर, मेरे या मेरे दोस्त के? ईश्वर और हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। ईश्वर और हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, हे ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? हे ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर बहुत 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 हंसा पर कुछ ना बोला। ईश्वर बहुत 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 हंसा पर कुछ ना बोला। बहुत बढ़िया, बहुत। ये हमारे ख्याल से ये कविता फ्री वर्ड्स का सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। थैंक खैर हम लोग बस 1 मिनट 2 मिनट हम चाहेंगे हाइकू की कुछ थोड़ा हाइकू के बारे में वर्दुल जी ने काफ़ी बताया है और काफ़ी आप असमंजस में भी होंगे। इसका कवर भी सब जगह दिखाया गया था। हाइकू एक किताब है। हाइकू जापानीज़ शैली एक विधा है जिसमें बहुत छोटी कविता लिखी जाती है, बहुत लघु। मुझे ऐसा लगा कि ये है तो 14वीं सदी की, लेकिन ये आज इतनी रेलेवेंट हो गई है जब से सोशल मीडिया आ गया है कि कुछ ही लफ्ज़ों में सब कुछ लिखा जाता है। और वैसे कहा भी जाता है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि कभी कुछ लोगों की तो पूरी जीवनी रसीदी टिकट के पीछे लिखी जा सकती है। तो इसमें आप मुझे यकीन है कि आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें से आज घर जाने के बाद वहाँ से हाइकू लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, 3 लाइनें होती हैं। पहली लाइन में 5 अक्षर होते हैं, वर्ण जिसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स 5, सेकंड लाइन में 7 और थर्ड लाइन में 5। इसी में आपको सब कुछ कहना है। ये जापानीज़ में लिखी गई थी, प्रयोग और भी हुआ, अज्ञेय जी ने लिखी, गुलजार ने त्रिवेणी लिखी, लेकिन वो तो जापानीज सोदुकू की तरह हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही समझ लें जापानीज़ की सब। इसमें अब मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और सारे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी दिए हैं। तो आप देखेंगे कि हताशा लेटी, ये पहली लाइन हो गई। और ये देख लीजिए कि 5 है, हताशा लेटी, हताशा लेटी। डॉक्टर 4, डॉक्टर से बूझे, हताशा लेटी डॉक्टर से बूझे 7। एंड अगेन लास्ट लाइन में 5 होने चाहिए। हताशा लेटी डॉक्टर से बूझे बेटा या बेटी। ये एक पूरी हाइकू हो गई अपने आप में। तो इसका इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है, संतोष रख, संतोष रख। सेकंड लाइन, ये समय भी बीते, ये समय भी बीते जैसे वो बीता, ये समय भी बीते जैसे वो बीता। और इसी तरह से कुछ लोग इससे जुड़ेंगे कि सुख या दुख, सुख या दुख 5, सुख या दुख। बिटिया ससुराल, बिटिया ससुराल, बस माँ जाने।
इस तरह की बहुत सारी बहुत कृति सुनाई बहुत जाएंगी, बढ़िया। तो मैंने कहा कि तो इन्होंने आप थैंक यू BLF, थैंक यू जमशेद जी, थैंक यू सतेंद्र जी, आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दी इट्स योर टर्न। आपका भी वर्तुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से मॉडरेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, gentlemen, for this very poetic session. I would like to open the floor to the audience. Due to paucity of time, maybe we can take only 1 or 2 questions. So, does anyone want to ask something to the audience? Okay, please pass the mic to that gentleman at the back. I would like to request you to please keep it very brief if possible. सर मैं भी एक पोएट हूँ, तो मुझे आपसे एक बस सर मेरा नाम रिजुल जैन है, मैं IHE भोपाल से हूँ। सर मेरा एक सिर्फ छोटा क्वेश्चन है, मैं भी पोएट हूँ, तो मैं जनरली जो पोएम्स लिखता हूँ खुद के लिए लिखता हूँ या खुद की चीज़ों पे हुई जो होती मेरे साथ उनके लिए लिखता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे उन पोएम्स को पब्लिश करना चाहिए या नहीं? देखिए, पब्लिश तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमको लगता है कि ये पब्लिशिंग के लायक नहीं है और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे लगता है मेरे काव्य संग्रह में ये बस 20 कविताएं जो हैं आउट ऑफ 75 ये बेस्ट हैं, और बाकी जो 55 हैं वो मीडियम लेवल की हैं। लेकिन जब वो दर्शकों या पाठकों या श्रोताओं के हाथ में कविता पहुंचती है तो पता चलता है उन 55 में से 5 कविताएं लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। तो आपको नहीं मालूम, इसको मैं कहता हूँ पाठकों का एक लोकतंत्र होता है। आपको नहीं मालूम आपके पाठक कौन सी कविता को पसंद करेंगे, तो आप अपनी कविताओं को ज़रूर छपवाइए। What is the difference between poetry and ghazal? जमशेद जी, I think you will take this. पोइट्री कविता है और गज़ल भी कविता है। फॉर्मेट अलग हो सकता है। पोइट्री इज़ अ लार्जर वर्ड। आई मीन पोइट्री encompasses everything, all kinds of poetry, all kinds of गज़ल is one of the things. डिफरेंस बिटवीन गज़ल एंड नज़्म अगर आप शायद पूछना चाहें, नज़्म वो होती है जो कि एक तरह से मुक्त छंद की बात कही गई और एक ही थीम के ऊपर 11, 12, 14 लाइनें होती हैं, वो सब एक ही थीम, सिर्फ एक बात के ऊपर पूरी होगी। वो किसी एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने ले लिया भोपाल, अब भोपाल पे लिखी जाएगी तो नज़्म लिखी जाएगी। गज़ल जहाँ लिखी जाएगी वहाँ पे 5 या 6 कपलेट होते हैं, एक स्टार्टिंग वाला होता है और एक लास्ट वाला होता है, और उनमें हर कपलेट अपने आप में कंप्लीट होता है। तो यही फ़र्क है जी। गज़ल इज़ ऑल्सो पोइट्री, वेरी मच यस जी। All right, we'll take one last question. Please pass the mic. Young lady, yes, please. Thank you so much. Hello, I'm Avni. I wanted to ask that I get it that topics are changing and how, but do you think the style of poetry is also changing with modern times? And do you like the new style that is emerging as a young crowd? देखिए, समाज बदल रहा है तो कविता कहने का ढंग भी बदल रहा है। आज जो नई कविता है ये 70-80 साल में पिछले जन्मी है, जिसको हम फ्री वर्स कहते हैं, और पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में फ्री वर्स जो है पिछले लगभग 100 साल में जन्मी होगी। उससे पहले पोइट्री करने का स्टाइल डिफरेंट था। तो डेफिनेटली जो आज स्टाइल है वो भी हो सकता है 50-100 साल बाद चेंज हो जाए। तो बस आपको एक पाठक के रूप में, एक श्रोता के रूप में ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो भी चीज़ सुनने को मिले या जिसके ऊपर आप अपना समय लगाएं पढ़ने में, वो चुन के लगाएं और अच्छी चीज़ को आप गैदर करें। Thank you, sir. Thank you so much, sir. I personally believe that the best is the writing in which we can convey the most in the least amount of words, and certainly that makes poetry a slightly superior form of expression. So thank you for this enlightening session that we've had today. I would like to request you to spend some time at the author's signing desk so that the people who would want to get their copies of their books signed can find you. I would now like to request Meenakshi Dua ma'am, founder member, Society for Culture and Environment, to kindly come and felicitate our discussants with a token of our appreciation. Art, like poetry, is another such medium through which we can convey a lot in just one little canvas. And thus, the memento, the mascot of BLF 2024, is developed by senior Gond artist Sri Ram Singh Urveti ji and is a motif rooted in timeless stories. With vibrant strokes, Ram Singh ji brings to life swaying trees and mythical forms, echoing the melodies of Barndev, the revered musical instrument of the Pardhan Gonds. The particular piece chosen for this year highlights how ideas that BLF also helped spread take root as seeds and grow into beautiful, luscious and sturdy trees, spreading their influence all around them.
Thank you so much, gentlemen. It was certainly a delight to hear you. आप